Okay, so now we'll go ahead with excretion and osmoregulation, coming to the last part of the lesson, right? So in the previous session, we have completed the main important physiological aspects of this excretion. जिसमें हमने ये देखा था कि how the urine is produced in the body, correct? We are talking from human physiology point of view. तो हमने देखा कि kidneys का, nephrons का, what are the different roles of each part of the urine formation, you know, 3 steps urine formation. Can you remember that? First one, it is ultrafiltration. Second one, selective reabsorption. And the third one, it is tubular collection, a tubular secretion. Okay, so after that the final urine is produced. And हमने ये भी देखा कि the composition of the urine, the different components of the urine, how it changes according to the situation, है ना, कि जो अपना diet होता है, right? If we are under any kind of medication, the lifestyle, the amount of water content in our body, a fluid content in the body, the external temperature of the environment, है ना, winter season, summer season, it changes due to certain reasons. तो ये सब हमने last time देख लिया था. एंड ये भी हमने देखा था कि लाइक अगर किसी का नॉर्मल यूरिन रिपोर्ट आता है पैथोलॉजिकल लैब से, तो उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स लिखे हुए रहते हैं. So you come to know, observing the report, you come to know whether the body condition is normal or not. So the detailed study of the urine gives a lot of idea about the health condition of the person, right? उसके बाद हमने देखा था कि what are the different this one hormonal influence on urine, right? उसमें सबसे important हमने देखा था ADH के बारे में, एंटी डायूरेटिक hormone. This is very important. And इसके हिसाब से हमने एक deficiency disorder का भी नाम देखा था, that was diabetes insipidus, which is also known as water diabetes. Okay, the person suffering from this has mainly got 3 symptoms: polyuria, polyphagia, and polydipsia. Okay, then we have discussed the role of angiotensin, because kidneys का urine formation के अलावा दूसरा important role आता है osmoregulation, right? So osmoregulation मतलब how the ion contents, especially the sodium ions, chloride ions, water amount, all these are kept in balance, and because of which the blood pressure is brought back to normal if it increases or decreases. So up to a certain extent, kidneys can also balance that, right? So reticular activating system, antidiuretic hormone, ये कैसे reabsorption करते हैं. Then there is this hormone called as the atrial natriuretic peptide, ANP. याद है? This is produced by the atrial wall, that is the wall of the heart, one of the chambers of the heart. Atrium is one of the chambers. 12th में you will learn about circulation. Circulatory system में हार्ट के बारे में पूरा डिटेल में आएगा. एंड 12th में you are also having endocrine system, तो उसमें हॉर्मोन्स के बारे में भी पूरा डिटेल में पढ़ो. So that time these words might come once again. अभी के लिए इसके point of view समझा अच्छे से. Okay, and then this is very interesting example that we have seen about the vampire bat. Do you remember this? Vampire bat. It is a sanguivorous mammal. Sanguivorous मतलब blood. yes, it feeds on, yes, it feeds on blood. Okay, तो इसका नाम ही है ना vampire bat. You know what are vampires, right? वो खून चूसते हैं, तो ये वही काम करते हैं, right? तो किसी भी large bird या mammal के शरीर पे चिपक कर it will suck the blood, है ना? And it's like ये क्या करते हैं कि when the bat is feeding, its kidneys will excrete large amount of dilute urine, बहुत ज़्यादा. Okay, तो उसलिए body mass भी reduce हो जाए and it is able to fly. So that is how it is compensated, right? And daytime में, because it is a nocturnal creature, रात को active रहते हैं, so daytime में it cannot go to drink water. So blood में जितना वो protein मिला है उसको, वो concentrate होता चला जाता है, nitrogenous waste. So instead of diluting that waste, the kidneys will concentrate the urine in order to conserve the water. तो ये osmolarity में जो sudden changes आता है rapidly,
That is an adaptation by such kind of animals in order to survive such conditions. Okay, so coming back to human beings, तो अभी हमने excretion and osmoregulation with respect to human beings with respect to kidneys we have seen in detail. The major part of excretion takes place via kidneys and inside which there are millions of filtering units जिसको हमने बोला था nephrons, also called as the uriniferous tubules. उसके सारे structures याद है, Malpighian corpuscle, Bowman's capsule, PCT, DCT, loop of Henle, है ना? तो वो सब अच्छे से रिवाइज करना है. किडनीज का पार्ट खत्म. ओके, नाउ बिकॉज द टॉपिक इज अबाउट एक्सक्रीशन, सो फॉर एक्सक्रीशन टू हैपन इन ह्यूमन बीइंग्स, ओके, इट इज नॉट ओनली किडनीज दैट डू द वर्क. एक्सक्रीशन दूसरे पार्ट्स की वजह से भी होता है. So there are other structures in the body which are also involved in excretion to some extent. It may not be as major as that of kidneys. Okay, तो उसमें सबसे important एक organ आता है skin. Okay, now can you tell me what is the skin? Skin क्या है बताओ? The uppermost layer of the body. Uppermost layer or covering of the body. Yeah. Okay. So can you imagine any human being without skin? No. Terrible, right? Right. So nature ने skin करके जो structure दिया है, it is an exoskeleton, a kind of. Okay, so it is a protective covering all over the body. Right. इसीलिए doctors जब surgery करते हैं किसी internal part का, and when they have to make an incision on any part of the skin, so it is done as less as possible because अगर skin का covering खुल जाएगा, so there is a high chance of infection going inside. And that's why after the surgery, इसलिए कितना aseptic conditions भी रखते थे, clean and sterile conditions, right? So that the infection is very less or negligible. So skin is the one which is able to protect the internal organs to a large extent. Now, when you say skin, okay, it looks like just one covering, but वो एक बहुत बड़ा tissue है. उसका अगर हम section देखेंगे skin का, ये देखो, LS of the skin. So you can see there are a lot of other structures which are associated with this. Skin में सबसे पहले दो main layers होते हैं. The lower portion, inner one, is called as the dermis, and the uppermost one is called epidermis. So what we can see from outside is mainly the epidermis portion. Dermis जो है वो अंदर की तरफ है, but ये पूरा एक अपना चमड़ी का layer बनता है. Okay, so internally, what are the other structures that you are seeing in the skin? अभी फॉर एग्जांपल पूरे शरीर में किसी भी पार्ट में स्किन में अगर कोई कट या स्क्रैच ऐसा कुछ आ गया तो इमीडिएटली इट विल स्टार्ट ब्लीडिंग. ओके, सो व्हेन इट स्टार्ट्स ब्लीडिंग इट मींस व्हाट, कि देयर आर ब्लड वेसल्स इन द स्किन. ब्लड वेसल्स है, उसका वॉल कट रहा है, इसीलिए ब्लीडिंग हो रहा है. राइट, सो यहाँ पे देखना, यू कैन सी ब्लड वेसल्स. And we have three types of blood vessels: arteries, veins, capillaries. Okay, जो veins होते हैं वो थोड़े स्किन में ऊपर की तरफ नजदीक रहते हैं, arteries थोड़ा अंदर होते हैं. That's why even when the doctors give you injection, हाथ में देते हैं ना injection, so it is said to be intravenous. कि डॉक्टर्स का इंजेक्शन का जो सिरिंज है वो भी इतना ही दूर पेनिट्रेट कर सकते हैं कि वेन्स तक जा सकते. आर्टरीज में इंजेक्शन बहुत रेयरली दिया जाता है. इट इज मेनली द वेन्स. Okay, ultimately it is all involved in blood circulation, right? So blood vessels are there. You can see subcutaneous fatty tissue, वो तो है ही skin के अंदर. You have learnt about adipose tissue, you remember, and it differs from one part of the skin to another. It also differs from one person to another. Okay, we have already spoken about that. Then you know there are sweat glands. You know what is sweat? We were in the green race competition when we walked from Ambivali to Tikwala. तो सबसे ज्यादा सिक्रेशन हुआ था स्वेट का. yes or no? हम लोग ह्यूमिड वेदर में थे एकदम. तो स्वेट इज समथिंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द स्किन. तो वो स्वेट का ग्लैंड देखना अंदर कैसा है. इट्स लाइक अ कॉइल्ड मास.
and it is in connection with the blood vessels. Okay, and ये coiled mass ऐसे ऊपर की तरफ आता है, and on the epidermis it opens into a sweat pore. ये जो pore लिखा हुआ है ये sweat pores है कि जब हमें पसीना आता है तो स्किन से बाहर आता है, तो वी कैन नॉट सी इट कमिंग आउट, ऐसे फाउंटेन की तरह नहीं आता ना स्वेट, इट जस्ट कम्स ऑन द सरफेस, पूरा पसीना शरीर पे चिपका हुआ रहता है, तो ये पोर्स से बाहर निकलते हैं. तो द नंबर ऑफ पोर्स ऑन द स्किन अगेन डिफर्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. तो कुछ लोग होते हैं जिनको पसीना बहुत आता है, एंड कुछ लोग होते हैं जिनको कम आता है, इट डिपेंड्स, राइट. किसी को एकदम अच्छे ठंडे मौसम में भी अगर कुछ वर्कआउट कर लो तो पसीना आ जाएगा, किसी को अच्छे खासी गर्मी के मौसम में भी ज्यादा नहीं आता पसीना, right? So that is dependent upon the pores, and of course the fatty tissue inside, like if you have too much of adipose tissue you will tend to sweat more. Okay, so that depends again, and बाहर का environment पे भी matter करता है. तो ये sweat gland का कैसा होता है कि it is in connection with the blood vessels. तो blood vessel में जब blood जा रहा है, गर्मी के मौसम में normally किसी इंसान को पसीना बहुत आता है. So when the temperature outside is hot, that time these blood vessels they slightly expand, dilation होता है गर्मी के मौसम में. So when the blood vessels expand there is more amount of blood passing through it, and blood mainly contains water. So वो जो extra water है that is absorbed by the sweat glands mixed with a lot of salt. कभी ऐसा होता है ना कि फोरहेड के साइड से पसीना आ गया, गलती से मुंह में चला गया, तो you get to know the taste. Right? So what is the taste of sweat normally? Salty. Yes. दिखता सिर्फ पानी है but वो salty, and वो salt क्यों आ रहा है? Because it is being removed. That is why it is a part of excretion. It is not only water, it is water with the dissolved salts, and that's the reason you won't believe we are also provided with these eyebrows. आंख के ऊपर जो eyebrows दिए हुए हैं वो क्यों दिया हुआ है नेचर ने? Is it only for the aesthetic value? No, मतलब पसीने को रोक ले. हाँ, फोरहेड से ज्यादा आता है ना, कुछ रीजन्स होते हैं शरीर में जहाँ से ज्यादा पसीना आता है ना, द फोरहेड रीजन इज वन ऑफ देम. तो जब ऊपर से पसीना टपकेगा तो आईब्रोज विल बी एबल टू एब्जॉर्ब इट, अदरवाइज वो आंख में जाएगा तो यू नो वेरी वेल इट विल गिव अ बर्निंग सेंसेशन बिकॉज ऑफ द सॉल्ट. ये सब प्लानिंग के साथ ही, हम लोग आईब्रोज के साथ वो काटाकुटी करते हैं वो अलग बात है, राइट, बट दैट इज the one which is provided by nature. अब eyebrows भी देखना हर किसी का अलग अलग रहता है. Some of them have very thin, faint eyebrows. Some others have very big. किसी को रहता ही नहीं ठीक से, मतलब बहुत कम रहते हैं, है ना. एंड किसी को इतना बड़ा bushy टाइप eyebrows रहते हैं, एकदम werewolf टाइप दिखेगा. Right? So it depends from one person to another. But that is the reason. And the other thing, say eyebrows बोलो या शरीर का कोई भी पार्ट बोलो, epidermis के यहाँ से you can see when the hair follicles are rising out. So skin has got a lot of hair, and you know that. So there are different regions in the body where the amount of hair is less or more. Okay, जैसे facial hair is applicable for males, तो वो भी skin में से ही आ रहा है, right? So hair in the armpit region, hair in the genital regions, right? Hair on the chest in the case of males. So ये सब skin में से ही निकलता है. So hair जो है that is arising from the dermis portion. You can see ये पूरा structure clear दिखा रहा है. ये जो hair है उसका जो base है that is internally embedded in the dermis tissue, and then the shaft and the hair follicle arises out of the skin. Okay, so this hair, अभी suppose किसी reason से ये hair को अगर हम खींच के pluck करके निकालेंगे तो will it pain? You know that waxing करते हैं ब्यूटी पार्लर वाले, हाँ. तो उससे क्या होता है, हाथ में एक्स्ट्रा बाल वगैरह रहेगा तो ऐसा खींच के निकालते हैं, पेन्स, है ना. तो व्हाई डज इट पेन व्हेन द हेयर इज प्लक्ड? रूट रहेगा ना, मतलब रूट से हाँ, अटैच रहेगा. का रूट देखना, दिस इज कनेक्टेड टू द स्किन एंड वहां पर नर्वस टिश्यू, nerve receptors. The pain is because of the nerve receptors. Okay,
एंड यू कैन सी हेयर इरेक्टर मसल करके लिख, ओके समटाइम्स ऐसे हम बोलते हैं ना रोंगटे खड़े हो गए, you listen to some very good music या you hear about an incident or something, या अचानक से एकदम से डरा दिया किसी ने या बिजली का झटका लग गया, तो what happens, the hair stands erect, that is called piloerection. okay, hair का pilus जो होता है उसमें it stands straight because of that, तो वो भी एक kind of effect है, hormonal influence, nervous influence. okay, and then most important structure on the skin from excretory point of view, that is oil gland. कि इंसान को पसीना तो आता ही है, बट पसीने के साथ साथ तेल भी चिपका हुआ है, यू नो दैट. So in the summer season, like the condition that is going on right now, suppose if you are out in the hot sun for a long time, you know how it feels on the skin, है ना, एकदम चिपचिपा पसीना सा, टीवी में ऐड वगैरह आता है, यू नो दैट, है ना, क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश एंड व्हाटएवर यू से, राइट. तो ये जो ऑयल है ऑन द स्किन, दैट इज अ नेचुरल सिक्रीशन, and that is because of a gland present in the dermis portion which is called as sebaceous glands, and iska jo secretion hai that is called as the sebum. So that sebum is an oily secretion. Now why nature has provided us with this oil gland on the skin? kya karna hai is tel ka, pakode talna hai. There must be some reason why this is given. नहीं दिया तो भी चलेगा ना, मतलब किसी किसी को ऐसा नहीं रहता ना, नॉर्मल स्किन भी रहता है, नॉर्मल ड्राई स्किन रहते हैं नॉर्मली, वो एनवायरमेंटल कंडीशन पे भी डिपेंड करता है. लाइक इफ यू सी पीपल लिविंग इन द हिली रीजन्स जहाँ पे मोस्टली ड्राई वेदर होता है, तो देयर स्किन इज आल्सो ड्राई, उनको बाहर से वो मॉइस्चराइजिंग क्रीम वगैरह लगाना पड़ता है. हाँ. ओके, तो ये सिक्रीशन क्या बोलते हैं कि वहाँ के एनवायरमेंटल कंडीशन और जेनेटिक फैक्टर पे डिपेंड करता है. तो दिस सिक्रीशन इज नेसेसरी बिकॉज इट एक्ट्स एज अ लुब्रिकेंट ऑन द स्किन. ओके, ये सिक्रीशन स्किन को थोड़ा सा मॉइस्ट रखता है, बिकॉज स्किन अगर एकदम ड्राई हो गया, जैसे विंटर सीजन में कैसा होता है, कभी लिप्स फट जाते हैं, है ना, स्किन ऐसे एकदम पीलिंग पीलिंग टाइप रहते हैं, ड्राई हो जाते हैं, सो यू हैव टू अप्लाई क्रीम एंड ऑल एक्सटर्नली. तो नेचर ने नॉर्मल अपने को नेचुरल क्रीम बना के दिया. ओके, वो जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम वगैरह हम लोग इस गर्मी के मौसम में लगाते हैं क्या, इमेजिन व्हाट विल हैपन, अब लगा के चलेंगे तो right, so that is oil gland, so that is also kind of an excretion also, कि थोड़ा सा उसमें वेस्ट मैटर भी निकलता है. So now you have seen that if you see the detailed structure of the skin, एक तो sweat, right, and दूसरा oil, ये दोनों चीजें यहाँ से excrete होके बाहर आते हैं. So that's why it also plays a role in excretion. And बहुत important word है देखो skin से related, it is said to be involved in thermoregulation. Okay, thermoregulation मतलब हीट रेगुलेशन. yes, temperature. Okay, जैसे अभी ये मौसम जो चल रहा है, peak of the summer season, so when you sweat you actually feel cool. कि जब पसीना है और अगर हम लोग अच्छे से पंखा लगाकर बैठ गए तो पंखे के नीचे अच्छा फील होता है, because the air has got humidity. Suppose if you live in the interior regions somewhere where the air is also not very humid, it's a dry heat, तो वहां पर पंखा लगा के भी फायदा नहीं, बिकॉज हवा ही उतना गर्म है, तो पसीना भी ज्यादा नहीं निकलता है, हीट अंदर रह जाता है. तो स्किन इज एबल टू बैलेंस, सो व्हेन यू स्वेट यू एक्चुअली फील कूल. ओके, तो ये स्वेटिंग करने के वजह से शरीर ठंडा रह जाता है, दैट्स अ गुड मेथड इन द हीटर, इन द हीट सीजन, हॉट सीजन. ठीक है, वाटर NaCl, sometimes some people they sweat, they smell very bad. ओके, बहुत ही ज्यादा ओडोरिंग रहता है, तो उनका मेटाबॉलिज्म भी इम्बैलेंस्ड हो सकता है, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ लैक्टिक एसिड एंड यूरिया व्हिच इज नॉर्मली नॉट टू मच अमाउंट फाउंड इन द स्वेट, बट कभी कभी उनके स्वेट में बहुत ज्यादा आ जाता है. ओके, so that is also a part of the skin. ठीक है, तो समझा ये सेबेशियस ग्लैंड्स एंड स्किन के बारे में. ठीक है, now you have
नेक्स्ट वन स्किन के बाद आता है लंग्स. Okay, again in the 12th standard you have respiratory system also you will learn. So lungs you know very well, they are the balloons of the body, right? They are involved in exchange of gases from the outside. So जब हम सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं अंदर? What is breathing? Define that. Breathing. Of course you know. How do you explain or define breathing? Inhalation. Hmm? Inhalation of oxygen. नहीं oxygen नहीं. Inhalation of air and exhalation of carbon dioxide. अच्छा, inhalation of air और exhalation of only carbon dioxide. हाँ, यही बोला था आपने. आधा अधूरा याद रखा है. It is inhalation of air containing more oxygen and exhalation of air containing more carbon dioxide. याद आया? हाँ. हाँ. Okay. So it is inhalation and exhalation of air in both the cases. जब सांस लो तो हवा अंदर लेते, सांस छोड़ो तो हवा छोड़ते. ठीक है? So major component is oxygen while you take it, and that is required by the body for respiration. तो ये जो हम सांस लेते हैं, you know the basic idea about the respiratory system. कि nostril से सांस लेते हैं, nasal chamber में जाएगा, then there is the pharynx, then you have the windpipe, that is trachea branching into bronchi, each bronchus entering into each lung, internally dividing, branching out into bronchioles. At the end of the bronchioles there are alveoli, air sacs. तो ये जो एयर सैक्स और एल्वियोलाई हैं वो उनके ऊपर ब्लड वेसल्स का पूरा बंडल होता है जिसमें ब्लड आता रहता है. तो हवा में जो हमने सांस लिया है वो जो ऑक्सीजन है वो जाएगा ब्लड में, एंड ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आ जाएगा एल्वियोलाई. तो सारे एल्वियोलस जब सारा कार्बन डाइऑक्साइड जमा करेंगे तो व्हेन यू एक्सहेल आउट यू आर थ्रोइंग दैट कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड. तो बिटवीन द ब्रोंकियोल्स एंड द blood vessels, sorry, between the air sacs and the blood vessels there is a filtration which is happening. एक साइड से ऑक्सीजन उधर जा रहा है, एक साइड से कार्बन डाइऑक्साइड इधर आ रहा है, and that is why the carbon dioxide water vapor which is given out during exhalation is said to be a part of excretion. Okay, तो इस तरह के volatile substances जो mostly it is carbon dioxide water vapor, but sometimes if the person is having some imbalanced मेटाबॉलिज्म या डिपेंडिंग अपॉन द डाइट या जैसे स्मोकिंग वगैरह करते हैं तो उसके हिसाब से कभी कभी थोड़ा ज्यादा दूसरे वोलेटाइल सब्सटेंसेस भी होने के चांसेस है. ओके, सो इफ यू हैव टू मच ऑफ स्पाइसी फूड, ओके, तो देयर कैन बी मोर अमाउंट द वोलेटाइल सब्सटेंस. दैट इज व्हाई गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं खाते, है ना. एकदम से तीखा कुछ खा लो तो क्या हो जाते. पानीपुरी वाले के पास गए, है ना, उसको बोला एकदम मस्त तीखा पानी बना के दो करके, तो व्हाट हैपेंस, तीखा खाते तो आंख से भी आंसू निकल आते. व्हाई? यस, बिकॉज इंटरनली वो हीट जनरेट करता है ज्यादा स्पाइसी खाने से. So that heat can be given out in different ways. One is via lungs and sometimes via the sweat also. Okay, and दूसरा कभी ये नोटिस किया रहेगा कि जैसे रॉ ऑनियंस, प्याज जब खाते हैं गर्मी के मौसम में तो sometimes the smell is too bad from your mouth or from the sweat because that is a very strong one, volatile substance होते हैं ना उसमें, and that too sulfuric dilute sulfuric acid होते हैं. Okay, so that's why according to the seasons your diet should also match. अगर ठंडी के मौसम में अगर अच्छा स्पाइसी चटपटा वगैरह खा लिया तो इट फील्स गुड बिकॉज वो हीट जनरेट हो रहा है ना, बट गर्मी के मौसम में इट शुड चेंज. सो दिस ऑल्सो मैटर्स. एनवायरमेंटल कंडीशन ऑल्सो मैटर्स व्हेन इट कम्स टू फिजियोलॉजी. ओके, सो ये समझा अच्छी तरह से. फिर स्किन एंड लंग्स का रोल. ओके, एंड देन वी कम टू द नेक्स्ट वन दैट इज अबाउट डिसऑर्डर्स एंड डिसीजेस. किसी भी तरह का ह्यूमन फिजियोलॉजी जब हम पढ़ते हैं
तो उससे रिलेटेड क्या क्या डिसीज हो सकते हैं, क्या क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं, दैट आल्सो वी लर्न. वी हैव डन दैट फॉर दिस वन एनाटॉमिकल पर्सपेक्टिव आल्सो, है ना, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम. तो व्हेन इट कम्स टू एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसमें भी बहुत सारा डिसऑर्डर होने के चांसेस है, राइट, व्हिच अकर्स कॉमनली नॉर्मली, राइट. सो जैसे यहाँ पर देखो कि यूरिन में अगर एक्सेसिव एल्ब्यूमिन आ गया, व्हिच इज नॉर्मली अ ब्लड प्रोटीन, तो उसको बोलते हैं एल्ब्यूमिनूरिया. यू हैव टू रिमेंबर द नेम्स. ओके, तो ये क्यों हो सकता है, ये देखो, एंडोथेलियल कैप्सुलर मेम्ब्रेन का इंजरी. ओके, तो इससे क्या हो जाएगा कि किडनी के सेल्स कैन गेट इरिटेटेड if there are too much of toxins या heavy metals. Just a minute. So it's like if the kidney cells are continuously receiving a lot of toxins, yeah, heavy metals, so they cause irritation to the kidney cells, and that can lead to increased blood pressure, injury. तो जिसके वजह से ये चेंजेस हो जाता है, एंड कहीं भी इंजुरी अगर हो गया ऐसे सेल्स में, so during that filtration process, the useful component of the blood can go into the urine also. So one of them is albumin. इसलिए albuminuria करके होता है. Sometimes even the ketone bodies can be in large amounts in the urine. Okay, so ये हो सकता है diabetes mellitus. You know what is diabetes mellitus? इस लेसन में हमने देखा था diabetes insipidus, वो अलग है. That was because of deficiency of ADH hormone. ये है diabetes mellitus. इंसुलिन, इंसुलिन का डेफिशिएंसी, ये इसमें इंसुलिन ज्यादा होगा, डेफिशिएंसी होता, कम होता. ओके. ओके, इंसुलिन का नॉर्मल फंक्शन है कि ब्लड में से क्या बोलते हैं कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करके लिवर में डाल देने का, सो दैट द लिवर कैन कन्वर्ट दैट टू ग्लाइकोजन एंड स्टोर इट. ये इंसुलिन का नॉर्मल फंक्शन है. बट इंसुलिन अगर कम हो गया तो ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, एंड दैट्स अ वेरी कॉमन कंडीशन, यू नो, शुगर डायबिटीज जो बोलते हैं. Okay, so the blood and the urine of such patients are sweet. That is diabetes mellitus. Okay, starvation. What is starvation? फास्ट. हाँ, it is one of the reasons is fasting. Okay, अभी अगर एग्जाम में कम मार्क्स आ गया, मम्मी ने खाना दिया ही नहीं, घर में मस्ती बहुत किया, खाना नहीं मिला, तो starvation. Okay, तो बहुत ज्यादा टाइम तक भूखा रहना भी सही नहीं. This can happen. Ketone bodies develop हो सकते हैं, and that can result in the come out in the urine. ओके, या अगर डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स काफी कम है तो ये भी पॉसिबिलिटीज है. इसलिए जो स्पेशली ग्रोइंग एज में लोगों का वो मेंटालिटी होता है ना कि मोटा हो रहा है तो मुझे खाना कम खाना चाहिए, तो कम खाने के चक्कर में खाते ही नहीं है, एंड दे अंडरगो स्टारवेशन. दिस कैन बी डेंजरस. तो खाना कम खाने से मोटापा कम होगा ऐसा नहीं होता. ओके, इफ यू वांट टू रिड्यूस द वेट, इट्स बेटर टू फॉलो द और यू कैन से कंसल्ट अ डाइटिशियन. डाइटिशियन जैसा बताएगा उसके हिसाब से फॉलो करना. ओके, खाना कम खाना या बंद करना कोई सोल्यूशन नहीं, खाना चेंज करो, दैट इज द वे. तो वन हैज टू अंडरस्टैंड दैट, है कि नहीं, राइट. ओके, एंड देन समटाइम्स WBCs कैन बी प्रेजेंट इन द यूरिन. तो WBCs भी ब्लड के सेल्स हैं, ल्यूकोसाइट्स. ओके, तो अगर यूरिन में ल्यूकोसाइट्स आ रहा है, इसका मतलब देयर इज सम इन्फेक्शन और सम इंजरी इन एनी पार्ट ऑफ द किडनी और इन द यूरिनरी ऑर्गन्स, बिकॉज ऑफ व्हिच द WBCs आर कमिंग आउट, राइट. सो दैट्स व्हाई अभी इतना समझ में आ गया रहेगा कि यूरिन का टेस्ट करने से काफी कुछ पता चलता है अंदर के बारे में. एंड इट इज नॉट ओनली एसोसिएटेड विद द किडनीज, इट इज थ्रू आउट द सर्कुलेटरी सिस्टम, समटाइम्स द हॉर्मोन्स, है ना, समटाइम्स द जनरल मेटाबॉलिज्म, जिसका पूरा आइडिया यूरिन में मिल सकता है. ओके, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट किडनी स्टोन्स, है ना, बहुत डेंजरस कंडीशन है. अगर बहुत माइल्ड हो, डिटेक्ट हो गया तो वेल एंड गुड, इट कैन बी ट्रीटेड.
बट कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है एंड समटाइम्स इट बिकम्स टू मच कि सर्जरी करके भी निकालना पड़ता है, करेक्ट। सो किडनी स्टोन्स उसको रीनल कैल्क्यूलाई करके बोलते हैं। नाम है किडनी स्टोन बट इट कैन बी इन एनी पार्ट ऑफ द किडनी, ओके, और समटाइम्स इवन अदर पार्ट्स ऑफ द यूरिनरी सिस्टम आल्सो। समटाइम्स यूरेथ्रा में स्टोन हो सकते हैं, कभी यूरिनरी ब्लैडर में हो सकता है, ओके, कभी यूरेथ्रा में होने के चांसेस है, यूरेटर्स में होने के चांसेस है। So all these kinds of stones are very very painful because सबसे ज्यादा painful होता है during urine passing out, micturition, okay, and इसका सबसे बड़ा common reason है पानी कम पीने का। So that's why you should always have your good fluid intake, चाहे कोई भी सीजन हो। नॉर्मली ये भी मानते हैं ना कि ठंडी के मौसम में ज्यादा प्यास नहीं लगते हैं, ऐसा नहीं होता, बिकॉज यू आर लूजिंग वाटर इन डिफरेंट वेज ना, right? In the summer season you are passing more of the sweat, in the winter season there is more of the urination, okay, so water loss is there always, dehydration तो होता ही है, तो पानी पीते ही रहना, right? Fluid intake must happen. तो कैल्शियम के स्टोन्स होते हैं, तो कैल्शियम ऑक्सैलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, ओके, समटाइम्स स्ट्रूवाइट स्टोन्स होते हैं। ये मोस्टली होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, एंड ऐसे बैक्टीरिया जो यूरिया मॉलिक्यूल को ब्रेक कर सकते, okay, and they can lead to this kind of stones, okay. Then uric acid के stones होते हैं, ये सबसे ज्यादा होते हैं जो पानी कम पीते हैं, या ऐसे डाइट खाते हैं जिसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन हो। So this is more common in the case of people who consume non-vegetarian food, okay, because उसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा होते हैं। So that's why if you are having more of the proteins in your diet, it's always advisable to drink sufficient water, because उसके मेटाबॉलिज्म को ज्यादा एनर्जी लगता है as compared to carbohydrates and fats, and that too animal based protein and plant based protein, बहुत डिफरेंस हो जाता है। अभी प्लांट बेस्ड में पल्सेस, दाल वगैरह जो खाते हैं उसमें प्रोटीन्स मिलते हैं, सो दे आर इजियर टू डाइजेस्ट एज कंपेयर्ड टू एनिमल प्रोटीन, जो मीट प्रोटीन्स होते हैं, ओके। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट इफ यू वांट टू अवॉइड यूरिक एसिड स्टोन्स, राइट। देन आता है सिस्टीन स्टोन्स, ओके। तो इट्स लाइक अगर किडनीज बहुत ज्यादा अमीनो एसिड्स को एक्सक्रीट करेगा, सिस्टीन इज वन ऑफ द अमीनो एसिड्स, तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, ओके, दैट इज कॉल्ड सिस्टीन स्टोन। तो धीरे धीरे सिम्टम्स क्या आ जाएगा किसी भी तरह का स्टोन्स होगा तो, कि देयर विल बी इंटरमिटेंट पेन रिब केज के नीचे, ओके, एंड यूरिन विल अपीयर एबनॉर्मल, इट विल बी हेजी, ब्राउनिश, रेडिश या पिंकिश कलर, जो नॉर्मली नहीं रहता, नॉर्मल इट इज येलोविश कलर, ओके, एंड फ्रीक्वेंट अर्ज टू पास यूरिन, एंड ऑल्सो पेन ड्यूरिंग मैच्योरेशन। अगर वो पेन आए तो इट इज एबनॉर्मल, ओके। सो इट्स लाइक अगर ऐसा किसी भी तरह का एबनॉर्मलिटी दिखाई दे यूरिन के टाइम पे या यूरिनेशन के टाइम पे, इट्स ऑलवेज बेटर टू कंसल्ट द डॉक्टर, उसको इग्नोर नहीं करना है, राइट। सो समटाइम्स डायग्नोसिस क्या होते हैं कि अलग अलग तरह के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एक्चुअल सिम्टम्स, कि यूरिक एसिड कंटेंट को चेक करने बोलेंगे, एक नॉर्मल यूरिन टेस्ट करने बोलेंगे बेसिकली, जिसमें सब लिख के आएगा, ओके। अगर उसमें भी कुछ बहुत ज्यादा नहीं डिटेक्ट हुआ तो डॉक्टर कैन टेल टू गेट अ एक्सरे ऑफ द किडनी डन, या सोनोग्राफी करा सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिम्टम्स द डॉक्टर कैन प्रिस्क्राइब व्हाट टेस्ट हैज टू बी डन, उसके रिपोर्ट के बेसिस पे आगे का ट्रीटमेंट बताएंगे फिर, ओके। बट किडनी स्टोन्स अभी स्पेशली सोनोग्राफी का जो रिपोर्ट आता है तो स्टोन का साइज वगैरह पता चलता है, सोनोग्राफी का रिपोर्ट एक बार देख लेना कभी किसी का, ओके। तो डायमेंशंस पूरा स्टोन का मेजर करके लिखा हुआ रहता है, कितना मिलीमीटर बाय कितना मिलीमीटर, ऐसा करके। तो उसके हिसाब से अगर स्टोन बहुत ज्यादा बड़ा है जो यूरिन से नहीं पास होगा तो डॉक्टर माइट अल्टीमेट में सर्जरी वगैरह बोल सकते हैं। समटाइम्स इट इज वेरी स्मॉल, तो मेडिसिन भी देंगे और फ्लूइड इनटेक भी सजेस्ट करेंगे, बेस्ड ऑन विच स्लोली स्लोली इट विल गेट डाइल्यूटेड एंड पास आउट इन द यूरिन, सो इट विल डिपेंड, ओके। नेक्स्ट है यूरेमिया, ओके। यूरेमिया का मतलब है नॉर्मली यूरिन कंटेन्स यूरिया विच इज अराउंड 0.01 to 0.03%, बट अगर वो यूरिया 0.05% से ज्यादा हो गया, एक्सेस हो गया, देन इट इज कॉल्ड यूरेमिया, ओके। सो इट इज हार्मफुल एंड समटाइम्स इट कैन लीड टू किडनी फेलियर, ओके। देन सो नेक्स्ट इज नेफ्राइटिस,
अगर किसी डिसीज का नाम आइटिस करके एंड होता तो व्हाट डज इट इंडिकेट? If the name of a disease ends with itis, पहले बताया था याद है? It is inflammation या swelling. Yes. Itis का मतलब inflammation या फिर swelling. So यहाँ पे word है nephritis. तो inflammation of nephrons. Okay, इसलिए nephritis. तो kidneys में inflammation होता है and which leads to proteinuria, कि passing out of proteins in the urine. तो ग्लोमेरुलर जो मेम्ब्रेन है इनिशियल पार्ट अल्ट्राफिल्ट्रेशन के टाइम पे वो इतना परमिएबल हो जाता है कि ब्लड का प्रोटीन वगैरह भी यूरिन में आ जाता है, वो फिल्टर आउट नहीं कर पाता. ओके, एंड प्रोटीन जैसे बड़े मॉलिक्यूल्स का रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो सकते, सो इट पासेस आउट इन द यूरिन. तो ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज होगा. ओके, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में सब ब्लड चला जाएगा एंड देन इट इज रिफ्लेक्टेड इन द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द स्किन एज एडिमा. स्किन के अंदर फ्लूइड का जमा हो जाता है, उसको एडिमा बोलते हैं. तो ये सब उसके और साइड इफेक्ट्स आ जाएंगे. सो दैट इज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग इन द नेफ्रॉन्स. तो अगर कभी किसी स्किन के भी किसी पोर्शन में कोई एबनॉर्मेलिटी इस तरह का नजर आएगा, इट कैन हैव अ रीजन इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम आल्सो. ये भी याद रखना है. तो ऐसा सब अंदर से पूरा कनेक्टेड. ओके, लाइक अभी तक इतना समझ में आ गया रहेगा कि नन ऑफ दीज ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स आर इंडिपेंडेंट. अब यहाँ पे हमने सर्कुलेटरी सिस्टम का भी देखा, डाइजेस्टिव सिस्टम का भी देखा, नर्वस कंट्रोल भी देखा, हार्मोनल कंट्रोल भी देखा. तो सब इंटरकनेक्टेड, राइट? सो वन थिंग, वन प्रॉब्लम कैन अफेक्ट अदर प्रॉब्लम, अदर ऑर्गन सिस्टम्स आल्सो. दैट आल्सो वन हैज टू बी केयरफुल, राइट? देन नेक्स्ट आता है रीनल फेलियर. फेलियर मतलब खत्म, नाउ यू कैन नॉट वर्क, है ना? ये जैसे हार्ट फेलियर बोलते हैं, कार्डियक फेलियर करके बोलते हैं, वैसे रीनल फेलियर. ओके, सो इट इज डिक्रीज, हाँ, डिक्रीज या रिडक्शन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. जो किडनी यूरिन फॉर्मेशन का जो फर्स्ट स्टेप है उसी में अगर डिक्रीज हो गया, रिडक्शन हो गया, दैट इज किडनी फेलियर. ओके, बिकॉज सबसे पहला स्टेप ही इंपॉर्टेंट है ना, कि मेजर अच्छे चीजों को ब्लड में वापस पहुंचाया जा रहा है अल्ट्राफिल्ट्रेशन में. बट अगर वही नहीं हो पा रहा है, मेजर कंपोनेंट्स, यूजफुल कंपोनेंट्स आर गोइंग इनटू द यूरिन, देन इट इज अ फेलियर. ओके, तो उसके दो टाइप हैं, एक है एक्यूट रीनल फेलियर, दूसरा है क्रोनिक. ओके, एक्यूट मतलब सडन वर्सनिंग ऑफ द रीनल फंक्शन. ओके, एकदम सडन चेंजेस हो जाएगा. तो सीवियर ब्लीडिंग के बाद नॉर्मली होने के चांसेस है. ओके, बड़ा एक्सीडेंट हो गया या ऐसा कुछ, तो जहाँ बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया, ओके, ये कोई इंजरी वगैरह हो गया जिसमें ब्लड लॉस इतना हो गया कि उसको कंट्रोल नहीं कर पाया, सो दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन. ओके, सो यूरिन आउटपुट में एकदम डिक्रीज हो गया, उसको ओलिगोयूरिया करके बोलते हैं. ओके, इफ द सी अल्टीमेटली यूरिन जो बन रहा है, इट इज बाय फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड. तो अगर शरीर में ब्लड का ही कंटेंट बहुत कम हो गया तो यूरिन विल बी वेरी लेस, स्कैंटी. ओके, तो लेस देन 400 ml पर डे या लेस देन 0.5 मिलीलीटर पर केजी पर आवर इन चिल्ड्रन. इससे कम अगर क्वांटिटी आ गया विच इज एबनॉर्मल, दैट इज कॉल्ड ओलिगोयूरिया. ओके, सो यूरेटर्स के उधर किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन होने के चांसेस है, कोई बड़ा मॉलिक्यूल या ड्रग्स वगैरह सब. एंड ब्लड में क्रिएटिनाइन लेवल अगर एकदम से इंक्रीज हो गया, ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट में आएगा वो, then it can indicate a condition like acute renal failure. Okay, अलग अलग सिम्टम्स है. इसलिए कभी ऐसा होता है ना कि सडनली रोड वगैरह में एक्सीडेंट हो गया, पर्सन इज ब्लीडिंग लाइक एनीथिंग, तो सबसे पहले किसी को क्या बोला जाता है कि इफ यू कम अक्रॉस सच अ विक्टिम एनीवेयर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डू नॉट वेस्ट टाइम एंड टेक द पर्सन टू द हॉस्पिटल. कई बार ऐसे केसेस में इंसान क्यों नहीं बचते हैं, बिकॉज एक ही रीजन होता है, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है. बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया तो ब्लड प्रेशर एकदम से डाउन,
किडनीज के पास भी ब्लड नहीं आ रहा है ना फिल्टर करने के लिए, तो किडनीज फंक्शन अफेक्टेड, लिवर अफेक्ट हो गया, लंग्स अफेक्ट हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्ट हो गया, एक के बाद एक सब बंद होना स्टार्ट हो गया। तो मोर देन अ लिमिट इफ द पर्सन लूजेस ब्लड इट बिकम्स फेटल। तो ऐसे इमरजेंसी केसेस के कभी अगर डॉक्टर्स के पास आते हैं हॉस्पिटल में वेर ब्लड लॉस हो गया, तो सबसे पहले चीज, बाकी कुछ रिपेयर करने के पहले सबसे पहले क्या करते हैं डॉक्टर्स, ब्लड लॉस को बंद करते हैं, ब्लीडिंग बंद करते हैं, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट। ब्लीडिंग बंद करने के बाद, क्योंकि क्या हो जाएगा एक बार ब्लीडिंग बंद कर देंगे ना, इफ द पर्सन इज स्टिल सर्वाइविंग, सो आरबीसीज आर कॉन्स्टेंटली प्रिपेयरिंग द ब्लड, फिर उसको सलाइन वगैरह दिया जाता है ताकि फ्लूइड कंटेंट बढ़ता जाए, प्रोटीन बनता जाए। एक बार ब्लड का लेवल नॉर्मल आ गया, देन द अदर सर्जरी और रिपेयरिंग कैन बी डन, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, क्रोनिक किडनी डिसीज, यह है प्रोग्रेसिव डिसीज, तो धीरे धीरे बढ़ेगा, एंड मोस्टली इट इज इरिवर्सिबल डिक्लाइन, कि इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, ये काफी ज्यादा टाइम तक चलता रहेगा। ओके, तो क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मतलब है नेफ्रॉन्स का ग्लोमेरुलस पोर्शन में स्वेलिंग। ओके, तो रिड्यूस्ड किडनी साइज हो जाएगा एंड एनीमिया भी होने के चांसेस है, दैट विल इंडिकेट क्रोनिक किडनी डिसीज। ओके, तो रीनल फेलियर के दो टाइप, वन इज एक्यूट रीनल फेलियर, अदर वन इज क्रोनिक किडनी डिसीज। अंडरस्टूड? ओके, then you have heard about hemodialysis? डायलिसिस के बारे में सुना होगा। हाँ, कुछ तो ट्रीटमेंट रहते हैं। हाँ, मतलब it is actually a specialization course for the people who study medicine. डायलिसिस टेक्नोलॉजी करके एक अलग से कोर्स आता है इसका। तो इट्स लाइक आर्टिफिशियल किडनी करके समझ लो, एक मशीन है जो किडनी का काम करेगा, बट इस मशीन को इंसान के शरीर के अंदर नहीं डाल सकते, तो उसको बाहर रखा जाता है। तो वही काम वॉट एवर किडनी इज डू इनसाइड द बॉडी, द सेम थिंग द मशीन डज आउटसाइड द बॉडी। तो ब्लड सर्कुलेशन से कनेक्ट किया जाता है पेशेंट, इट विल पास थ्रू द मशीन, okay, filtering of the waste will take place and the pure blood is again put back into the body, basically that is dialysis. Okay, तो ये पेशेंट से कनेक्टेड है। ओके, दिस इज द डायलाइजर। तो यहाँ से ब्लड रिमूव्ड ब्लड फ्रॉम क्लीनिंग, ब्लड प्रेशर मेंटेन करेगा, कितना ब्लड निकालना है वो मेंटेन करेगा, एंड ब्लड जब शरीर के बाहर आए तो इट हैज अ टेंडेंसी टू क्लॉट। तो यहाँ पर ब्लड को बाहर निकालना है बट क्लॉट नहीं करने देना है, बिकॉज फिल्टर होके वापस अंदर डालना है। सो देयर विल बी अ हेपारिन पंप व्हिच विल प्रिवेंट क्लॉटिंग, बिकॉज हेपारिन जो प्रोटीन है इट इज एन एंटीकोआगुलेंट, इट विल प्रिवेंट द ब्लड क्लॉटिंग। ओके, तो क्लॉटिंग नहीं होने देगा, फिर डायलाइजर में जाएगा, वहां फिल्ट्रेशन होगा। ओके, एंड देन एयर ट्रैप एंड एयर डिटेक्टर विल बी देयर, जो प्यूरिफाई करते रहेगा उसको, एंड देन द फाइनल क्लीन ब्लड इज पास्ड अगेन बैक टू द बॉडी, दैट इज हेमोडायलिसिस। ये कब करना पड़ता है? when the kidneys fail in such a way that it cannot be repaired, so person has to depend upon hemodialysis. तो डॉक्टर चेक करेंगे और बताएंगे कि कितने फ्रीक्वेंटली जाके डायलिसिस करवाना पड़ेगा, बिकॉज कॉन्स्टेंटली द ब्लड क्लीनिंग हैज टू बी कैरिड आउट। तो ये उसका ट्रीटमेंट है। ओके, तो ये उसका कैथेटर, ड्रेनेज बैग वगैरह सब रहता है जिसमें वेस्ट कलेक्ट करते हैं। ओके, ये पेरिटोनियल डायलिसिस है। ओके, तो इसमें कभी हॉस्पिटल में ऐसा जाके देखा रहेगा, पर्सन हु इज एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल and if he or she is in such a condition that the person cannot get up from the bed, so there is a catheter tube which is inserted. ये जो excretion है, urine formation वगैरह, okay, the person is not in a position to get up and visit the bathroom whenever required, so this catheter will be connected to this bag so that the person need not get up, and a catheter will collect the urine in the bag. Frequently the staff over there will collect the bag and dispose of the urine, उसको कैथेटर बोलते हैं।
तो ये कैथेटर का एक एंड जो होता है वो यूरेथ्रा में इंसर्ट करते हैं, बिकॉज यूरेथ्रा इज द ओपनिंग थ्रू विच द यूरिन इज कलेक्टेड। तो यूरेथ्रा में इंसर्ट करके कैथेटर ट्यूब कनेक्टेड। सो इसी कैथेटर से कनेक्टेड होता है एक डायलिसिस बैग। तो ये पेरिटोनियल डायलिसिस होता है, जहाँ पे पेरिटोनियल स्पेस से वेस्ट मैटर को कलेक्ट करके यूरिन का ब्लड का क्लीनिंग भी किया जाता है। दिस इज अ स्मॉल स्केल वर्जन ऑफ इट। ओके, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंटीकोएगुलेंट लाइक हेपारिन। वो ब्लड कोअगुलेशन या क्लॉटिंग को प्रिवेंट करेगा, बिकॉज वो नहीं करेंगे तो ब्लड बाहर आएगा एंड क्लॉट हो जाएगा, फिर फिल्टर होके क्लीन होगा ही नहीं ना देन। ठीक है, सो बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी में ये सब इन्वेंट करते हैं जो डॉक्टर्स आजकल यूज करते हैं। ओके, देन ये देखो, डायलिसिस इज रिगार्डिंग एज अ होल्डिंग मेजर। कि मतलब अभी सपोज अ पर्सन हु इज यंग एंड उसका किडनी का कुछ मेजर प्रॉब्लम हो गया, उसको डायलिसिस करवाना। So young person for the entire life cannot keep on visiting the hospital on every week for dialysis. It will be expensive also and it will be like very tedious process. Person पूरा dependent हो जाएगा ना इस सब चीजों के लिए। तो ये holding measure है। ओके, इसका फाइनल ट्रीटमेंट क्या है? अगर कोई रीनल ट्रांसप्लांट कर सके, ओके, या मतलब somebody who can donate a kidney and this person will receive a kidney, a healthy kidney. तो अगर एक हेल्दी किडनी उसको मिल गया एंड प्रॉपरली सब सेट हो गया, तो देन डायलिसिस इज नॉट रिक्वायर्ड एनीमोर। सो जब तक उसको प्रॉपर रीनल ट्रांसप्लांट नहीं मिलता है तब तक डायलिसिस करवाना पड़ेगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ होल्डिंग मेजर। ओके, देन द स्पेसिफिक केसेस अकॉर्डिंगली जैसा डॉक्टर देखते हैं वैसे डिटेक्ट करके बता देंगे। समटाइम्स इट हैपेंस कि किडनी ट्रांसप्लांट के लिए डोनर तो मिल जाएगा बट अ पर्सन्स बॉडी मे नॉट बी रिसेप्टिव इनफ या compatible enough to receive another organ, because kidney donation भी like it is a very important step, it is a very very protective step कि बहुत सारे लोगों का जान बच जा रहा है। बट कई बार क्या होता है कि बॉडी वो बाहर का ऑर्गन को एक्सेप्ट ही नहीं करते, वो कंपैटिबिलिटी भी उतना ही जरूरी है ना, राइट? So all these tests are performed and accordingly the doctor will decide. So it will, the cases might vary from one individual to another. Okay, इसके लिए थोड़ा सा जो easier टेक्निक दिखाया दैट वाज पेरिटोनियल डायलिसिस, वो रिपीट कर सकते हैं एंड ये घर पे भी कर सकते हैं, या समटाइम्स इफ यू आर अ प्रोफेशनल एंड इफ यू आर एट वर्क, तो फॉर ऑल दिस यू कैन नॉट कीप ऑन टेकिंग लीव। काम पे जाएंगे, एम्प्लॉयड होगा कहीं पर, तो इंसान को बार बार इस सब चीजों के लिए छुट्टी नहीं मिलेगा ना, एंड लीव एप्लीकेशन में बार बार थोड़ी नहीं लिख सकते कि मुझे डायलिसिस करवाने जाना है करके, राइट? इट इज नॉट अ लाइक सोशली थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं एंड इवन वाइल ट्रैवलिंग एंड ऑल, तो ये टेम्पोररी के लिए अच्छा है पेरिटोनियल डायलिसिस। तो उसमें डॉक्टर्स नर्सेस ट्रेनिंग दे देंगे कैसे करना है अगर घर पे भी करना हो तो। ओके, सो दैट इज वन ऑफ द ऑप्शंस, राइट? बट डायलिसिस के टाइम पे सिक्रीशन ऑफ एरिथ्रोपोएटिन, रेनिन, कैल्सिट्रॉल जो किडनीज नॉर्मली करते हैं वो डायलिसिस मशीन नहीं कर सकते। डायलिसिस मशीन किडनीज को रिप्लेस जरूर करता है बट ओनली फॉर वन थिंग, दैट इज फॉर फिल्टरिंग द ब्लड। बट किडनीज के जो बाकी फंक्शंस हैं वो डायलिसिस मशीन नहीं कर सकती। Okay, that is why it is able to save the life of the patient, but there are many other things which are like the patient will be deficient with. Okay, and the last thing we come to kidney transplant. Okay, 10th standard में वो lesson था याद है, सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, उसमें हमने ऑर्गन डोनेशन है ना उसके बारे में डिस्कस किया था। सो व्हाट इज ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन? Organ transplantation means a healthy organ from human body is transplanted to another human body. Okay, so a healthy organ from a living person or a dead person? दोनों भी चलेगा। Yes, depends. Depend है ना? Yes, sometimes if the person is dead, person से हाँ, preferably a living person, but sometimes if the dead person is available,
a dead body is available, हाँ तो उसमें within a few hours depending upon the organ, तो person हाँ can pledge for organ donation, कि जब वो जिंदा है तभी वो pledge कर सकते हैं कि after my death I am ready to donate so and so organs करके. So immediately after the death of the person, the respective healthy organs are harvested and they are given to another person so that it can save the life of people. तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन सबसे कॉमन है, एंड ये भी बोला जाता है कि नॉर्मली लाइक अ पर्सन हैज गॉट 2 किडनीज, तो दोनों किडनीज जरूरी है, बट समटाइम्स इफ वन किडनी अ हेल्दी किडनी इज ट्रांसप्लांटेड टू अनदर वन, देन आल्सो द पर्सन कैन सर्वाइव, कि एक किडनी पे भी सर्वाइव कर सकते हैं. ऑफ कोर्स यू हैव टू बी मोर केयरफुल कि उसमें कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं आना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, राइट. तो इसलिए कैडावरिक डोनेशन करके बोलते हैं. कैडावर का मतलब है अ डेड बॉडी. जो हॉस्पिटल्स में मेडिकल स्टडीज के लिए यूज करते हैं उनको कैडावर बोलते हैं. ओके, या फिर लिविंग डोनर. किडनी के लिए जरूरी नहीं है कि इंसान मरा हुआ हो, जिंदा इंसान भी किडनी दे सकते हैं, राइट. एंड लिविंग डोनर किडनी ट्रांसप्लांट, इसके भी 2 टाइप है. यू हैव जेनेटिकली रिलेटेड या नॉन रिलेटेड. समटाइम्स एनी ऑफ द फैमिली मेंबर्स हु आर रिलेटेड टू देम जेनेटिकली, दे कैन डोनेट द किडनी. और समटाइम्स द डोनर इज नॉट अ फैमिली मेंबर, किसी भी तरह से रिलेटेड नहीं है उनसे, कोई दूसरा इंसान है, तो नॉन रिलेटेड. तो सपोज अ पर्सन इज विलिंगली रेडी टू डोनेट अ किडनी, तो ऐसा नहीं कि हाँ मैं तैयार हूँ बोल के उसका किडनी निकाल के डाल दिया. टेस्टिंग होगा पहले कि हाँ, फर्स्ट द डोनर विल बी चेक्ड, ब्लड वगैरह चेक करके सब देखेंगे कोई इन्फेक्शन नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना करके. एंड देन इफ द डोनर इज फाउंड टू बी हेल्दी इनफ, देन द रेसिपिएंट विल बी चेक्ड एंड कंपैटिबिलिटी देखा जाएगा. एंड सर्जरी जब होगा, किडनी ट्रांसप्लांट कर देंगे, तो उसके बाद भी ऑब्जर्वेशन जरूरी है कि वेदर द बॉडी हैज एक्सेप्टेड द किडनी और नॉट. After a few months, if this everything is found to be perfectly fine, then the donation is successful, right. And जिसने किडनी ट्रांसप्लांटेशन अंडरगो किया है उसको इम्यूनोसप्रेसेंट्स दिया जाते हैं. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज इट्स लाइक अ ह्यूमन बॉडी का एक टेंडेंसी है, बाहर से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आएगा उसको दुश्मन ही मानना है, तो ऑटोमेटिकली द बॉडी विल सिक्रीट एंटीबॉडीज टू किल दैट ऑब्जेक्ट. तो इवन अ किडनी ट्रांसप्लांटेशन व्हेन इट इज डन, तो वो बाहर का कोई पार्ट अंदर आ गया तो उसको मारने को ट्राई करेगा. बट हियर द पर्सन, डॉक्टर्स आर अवेयर दैट द किडनी इज बीइंग गिवन पर्पसली टू सेव द लाइफ ऑफ द पर्सन. तो इम्यूनोसप्रेसेंट कि इम्यूनिटी को सप्रेस करो, उसको मारना नहीं है, उसको एक्सेप्ट करना है. दैट्स द रीजन इट इज गिवन. ठीक है, अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ इम्यूनोसप्रेसेंट्स. ओके, देन सर्जिकल रिमूवल किया जाता है, उसको लिथोट्रिप्सी करके बोलते हैं. तो ये क्या किया जाता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ द किडनी स्टोन यूजिंग शॉक वेव्स. ओके, देन डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस आर गिवन, स्पेशली बोलते हैं कि जिसको किडनी स्टोन्स का प्रॉब्लम है वो टोमेटो ज्यादा नहीं खाना चाहिए. कैन यू टेल द रीजन? उसके जो सीड्स है ना वो डाइजेस्ट नहीं होते. डाइजेस्ट नहीं होते हैं. दूसरा चीज, टोमेटोज कंटेन ऑक्सैलिक एसिड. तो ऑक्सैलिक एसिड रहेगा ना, वो हेल्प करेगा कैल्शियम ऑक्सैलेट बनाने के लिए. इट विल इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्सैलेट, so that can become a problem. Okay, so that's it about all the diseases and disorders with respect to excretory system. अच्छी तरह समझा, बहुत कुछ दिया एंड वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आर गिवन, है ना. तो इसके बारे में थोड़ा और अच्छे से फाइंड आउट कर, रीड कर, ठीक है. एंड गो थ्रू द क्वेश्चंस, दिस स्पेशली वो जो लास्ट सेशन में हमने किया था, दिस वन, यूरिन फॉर्मेशन, हार्मोनल रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, वो बहुत ज्यादा डिटेल में है एंड इट इज वेरी वेल कनेक्टेड. तो वो कैसे इंटरकनेक्शंस है, दैट यू शुड लर्न वेरी वेल. ओके, सो ह्यूमन फिजियोलॉजी इज ऑलवेज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट, है ना. अच्छे से समझ में आ गया पूरा. ओके, एंड इससे समझ में आता है कि एवोल्यूशन के टाइम पे ये सब कैसे डेवलप हो गया, बिकॉज अर्थवर्म जैसे छोटे ऑर्गेनिजम्स में देखो तो उनमें कितना सिंपल सिस्टम था, ह्यूमंस आते आते कैसे डेवलप हो गया. सो दैट आल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, लाइक व्हाटएवर यू लर्न इन बायोलॉजिकल साइंसेस,
it is very important to learn from evolutionary point of view, right? Okay, so any doubts in this topic? No. समझा ना अच्छे से? हाँ. Okay.